You can install this VMware VirtualBox on your system. It is free. It is open source. Is it visible to you, Aman? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So in this you have to download Ubuntu and put it. You will find some video from the internet how to do the things. Okay. Then in terminal, open the terminal. And like we will do the commands here. So few commands you already know from the first year. And we have to do in the first 2 labs of OS, we have to do commands. Like this is the, here it is not there. In new OS, I think it is there. I will put the OS course handout, OS lab course handout also. This OS first lab. Actually, I will put these files in your Teams, OS first lab also, and list of experiments for lab notice board. So this actually we will put on the lab notice board, that in the first second lab, you have to do the commands, basic Linux commands, illustration of shell function as well. Means this is about commands only. Okay, these all are about commands, and this is about writing shell script. So actually we will not ask these things in the exam. We may ask in quiz commands, some commands you may ask in quiz, but shell script we do not ask in exam or your theory exam or in the quizzes. But commands we may ask. Generally we don't ask, okay? But actually these commands and shell script, they should be learned by you for the lab purpose, okay? And they are very useful for computer science student also. From the 4th lab, we will do the programs based on system call, means implementing these commands. We will implement these commands from the 4th lab, 4th, 5th, 6th lab. Okay, after 6th lab, as I told you, you can build your own shell also. You can build your own shell also after doing these 3 labs. Okay, then in the 7th lab, from the 7th lab, it is actually the program based on the theory which we will study about scheduling, about threading, producer consumer problem, reader writers problem, means the synchronization problems. Okay, synchronization problems, deadlock detection, memory. So these are simple C programs. These are simple C programs, but for these C programs, means for multi-threading and above these 3, you have to, you will learn the, means this is only a means this is only the basic title. The complete list of experiments is also provided to you. This is for lab notice board, na? So only one page is this.
अब इस फोर्थ में आप काफी सारे प्रोग्राम बनाओगे यूजिंग फाइल सिस्टम कॉल, जैसे कॉपी कमांड का इम्प्लीमेंटेशन, कैट का इम्प्लीमेंटेशन, डिफरेंट कमांड्स का इम्प्लीमेंटेशन, वो सब आपको प्रोग्राम लिस्ट में मिलेगा। ये लैब नोटिस बोर्ड के लिए मेन, मतलब इधर जस्ट टाइटल लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स आपको सेपरेटली मैं रख दूंगा, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स भी रख दूंगा, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट फॉर लैब नोटिस बोर्ड भी टीम्स पे रख दूंगा। और फर्स्ट टू लैब्स में तो हमें कमांड्स करना है, ठीक है। एक बार मैं वो भी दिखा दूंगा आपको, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। जैसे वीक 1 में आपको कमांड्स करने हैं, वीक 2 में आपको कमांड्स करने हैं, वीक 3 में आपको शेल प्रोग्रामिंग करनी है, वीक 4 5 पे आपको सिस्टम कॉल्स पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, वीक 6 7 में सिस्टम कॉल्स मतलब पाइप वाले और pthread प्रोग्राम्स करने हैं। बिल्कुल उससे सिंक्रोनाइज्ड है ये। वीक 8 में सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, 9 10 में सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स, फिर डेडलॉक डिटेक्शन और फिर मेमोरी। जो आपको ये रेफरेंस दिया हुआ है सुमित दास, ये अभी मेन बुक है कमांड्स के लिए, ठीक है। और इस फाइल में जो ओएस फर्स्ट लैब फाइल में मैंने कमांड्स रखे हैं डिटेल में थोड़ा, मतलब ये डिटेल की तरफ जा रहे हैं हम। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट फॉर लैब नोटिस बोर्ड बिल्कुल शॉर्ट में है, इधर थोड़ा डिटेल में है लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। और ये ओएस फर्स्ट लैब मतलब कि फर्स्ट सेकंड लैब, इधर पूरे कमांड्स मैंने लिखे हुए हैं। जितने ज्यादा कमांड आप करोगे उतना अच्छा है, जितने ज्यादा कमांड आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। तो ये सारे कमांड मैं आपको कर करके दिखाऊंगा। और फर्स्ट टू लैब तो इवन वर्चुअली बहुत अच्छे से हो सकती है, वर्चुअली जो है ये बहुत अच्छे से हो सकती है, क्योंकि मैं सारे कमांड्स आपको कर करके दिखाऊंगा, सबका सिग्निफिकेंस बताऊंगा, और आप जो है उनको बाद में प्रैक्टिस करोगे और लैब रिकॉर्ड में लिखोगे उन कमांड्स को। मतलब ये कमांड एक एक लाइन में, एक एक कमांड के बारे में एक एक लाइन में लिखोगे फॉर द फर्स्ट टू लैब्स, ठीक है। जितने ज्यादा कमांड्स आप लिखोगे, जितने ज्यादा कमांड्स आप प्रैक्टिस करोगे, दैट विल बी बेटर। ओके, तो आप चाहे इसी फॉर्म में लिख लो, इस सीक्वेंस को फॉलो करो जो मैंने दे रखा है, या आप अपना सीक्वेंस में लिखो, दैट इज योर चॉइस। But more commands you learn, more commands you practice, that will be good. Okay, like here ls, ls-l, pwd. So I will explain these commands now. Is it okay? सर हाँ सर ये तो वर्चुअल बॉक्स हाँ डाउनलोड किया है मैंने सर, ये थोड़ा पुराने वर्जन का है। अच्छा, तो नया कर लो। मतलब पुराने पुराने पे भी हो सकता है मतलब। हाँ, पुराने पे भी हो सकता है, पुराने में उबंटू डाल लो। ओके सर। ये सब आपको, मतलब मेरा काम है ये सारे एक्सप्लेन करना, ठीक है, ढंग से। और ये जो आप पूछ रहे हो क्वेश्चंस, ये बच्चे ज्यादा अच्छे कर लेते हैं, बच्चे खुद ही ज्यादा अच्छा काम करते हैं इस मामले में। तो बच्चे आपस में करें, और आपस में करने के अलावा अगर किसी लैब असिस्टेंट की जरूरत आपको पड़ती है तो मुझे बताओ, मैं लैब असिस्टेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये काम बच्चे ज्यादा अच्छा करते हैं। जैसे सेकंड लेक्चर का वीडियो ही नहीं था, लेकिन बच्चे पता नहीं कहां से ले आए उसे भी। तो ls, it lists the directories in your current directory. So these are the directories in my current directory. Okay, suppose I create some file. So for creating the file I have to open some editor. So Pico is one editor in Ubuntu, Nano is also one editor. So they are simpler, matlab instead of vi editor they are simpler to work, Pico, Nano. Okay, or you can use gedit. In the first year I think you have used gedit, Pico, and then space, and then you have to give the file name. Suppose I have given the file name as first.c. Okay, now here suppose I write a simple program, include
stdio.h main printf hello. Okay. So to exit from this Pico editor, in the bottom you can see that this is written Control X. Control X for exit. So when you press Control X, so it will ask that you want to save the changes. So press Y. Okay. Yes, and then it will be saved as first.c. First.c file you can see here. Okay. Now to compile this file, we will write gcc first.c. I have written the printf spelling mistake is there. Control X, yes. Okay, so it is successfully compiled. So this a.out file will be created in green color because this is executable of this C program. And to run it, we will write ./a.out. Why ./a.out? Because dot represents the current directory. Means last class में मैंने जो बताया था वही सब करके दिखा रहा हूँ. As dot represents the current directory, so we have to write ./a.out. Okay. So it will print hello. Its execution takes place. Okay. So the significance of dot is that it represents the current directory. So in the commands, actually, suppose I want to do this cp first .c and I want to copy it with name f1 in my directory. So I will find one more file f1 in the directory and it has contents that are the contents of first.c. Now here for first.c and f1, I have written the relative path name because it is relative to pwd. If you see the value of pwd, it is /home/os boxes. Okay. But for commands, I need not to write any relative path name or absolute path name. For commands, shells itself means for executable files. For CP, for LS, for any executable file, shell searches for the directories declared in the path variable. Okay, so these are the directories declared in the path variable /usr/local/sbin/usr/local/bin/usr. These directories are declared /bin/sbin. Okay. So because these commands are there in these directories, so shell will search for it and execute it. Okay, we need not to specify the relative path name or absolute path name. Suppose I have written CPA, so it will give that command not for CPA भी कुछ जैसे कुछ L लिख दिया मैंने L भी command है. So UMA, he is showing different options that DMA is a command, DUMA is a command. Okay, but this UMA command not found. Like if I write a.out, it will give command not found. A.out command not found because for a.out it will search in the directories declared in the path variable, and a.out is not in the directories declared in the path variable. Okay, it does not search in the current directory. Unix shell does not search in the current directory. DOS shell search for executable in the current directory also. Okay, if you want that it should be searched in the current directory,
what you can do, path equals to $path :dot. So now it will search in the current directory also. Okay, means if you write now a.out, it will execute. Means now you need not to write ./a.out because this is also appended. By these arrow keys, you can execute the previous command. These arrow keys, they can be used for executing the previous command. Now echo $path, you will see here one dot also. So now the shell will search in the current directory for executable. Okay. On that day, we also discussed the tree of Linux file system. So if I write cd ... what will be my pwd /home, because I moved to parent directory, because my current directory was /home/osboxes, and when I have written cd ... I moved to the previous directory, that is not previous, it's parent directory, that is /home. If I again write cd ... now I am at root. I am at root directory. If I do pwd, it will show it as root directory. Okay. If I do ls, you can see here the various standard directories. Bin, which contains binary executable files. Okay. Dev, that contains the device files. etc, that contains the administrative utilities. Okay. And various other standard directories are there. Okay. Now I will show you, suppose I do cd bin. I need not to write now cd/bin. If I am in under /home/osboxes, I have to write cd/bin, the complete path name. Now I can write cd/bin also and cd bin also, because bin is its relative path name now. So now I am in bin directory. If I do ls pipe more, why I have written pipe more? Because more is a pager. ls is a ls lists the files and directories in your current directory. Okay. Now ls is writing its output in the pipe, not on the screen, because I have used here one pipe. So ls will write its output in the pipe, and more is a pager. Pager means if a long file is there, you can view that file. You can view that file using this more pager or less pager. Okay. So these are pagers. जैसे editors है ना, pico, nano, gedit, उसी तरह more or less, more and less, they are pagers. Okay, to view your large files. तो more का और use बताऊंगा अभी क्योंकि इसका कमांड में ज्यादा आउटपुट आ सकता है ना, तो सारा आउटपुट देखने के लिए I am using this more pager. So it will show you the output like this. When you press enter, it will mean these are the commands which are there in enter. प्रेस करने से वन लाइन फॉरवर्ड जाएगा मोर पेजर में. ठीक है. और अगर आप मोर पेजर से एग्जिट होना चाहते हो तो क्यू प्रेस करोगे. क्यू प्रेस करते ही बाहर आ जाओगे. ठीक है. ls करने से देखोगे you will find all the files here. All the files, they are executables. They are in green color. Okay. All the files, they are executables. Okay, so you will find here all the commands, cat, cp, your shell is also there. Shell कौन से होते हैं? bash shell, bash, first command bash ये देखो. ठीक है. gzip command zip करने के लिए यूज होता है. kill command सिग्नल भेजने के लिए यूज होता है.
ls कमांड लिस्टिंग करने के लिए यूज होता है, mv कमांड रीनेम करने के लिए यूज होता है, echo कमांड कुछ डिस्प्ले शेल वेरिएबल्स को डिस्प्ले करना है उसके लिए यूज होता है। ठीक है, cd आपको नहीं मिलेगा क्योंकि cd इज ए इंटरनल कमांड, cd आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए, ps प्रोसेस लिस्टिंग देखने के लिए, वो भी अभी करेंगे। यूनेम सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी ओएस का कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए यूज होता है यूनेम। stty करंट टर्मिनल सेटिंग्स के लिए यूज होता है। ठीक है, और आपको शेल्स दिखा रहा था ना मैं, तो बॉर्न बी शेल हो ही गया। बॉर्न शेल इसमें नहीं है, किसी और डायरेक्टरी में होगी। और कौन सी होती है, शी शेल, शी शेल भी नहीं है। बैश बॉर्न सी शेल कॉन के शेल भी नहीं है यहाँ, वो किन्हीं और डायरेक्टरीज में होंगी, मतलब क्योंकि कई कई डायरेक्टरीज थी ना, स्लैश यूएसआर स्लैश बिन भी था, एस बिन भी था। तो cd, आप सपोज मैं cd स्लैश यूएसआर स्लैश एस बिन में जाना चाहता हूँ तो मुझे कंप्लीट पाथ नेम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिन में हूं ना, या तो मैं ऊपर जाऊं तब मैं रिलेटिव पाथ नेम दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें आ गया यूएसआर बिन में, इसमें ls करूंगा। अगेन these commands are there in green color, in blue color directories are there। ओके, ये सब डायरेक्टरीज है ब्लू कलर में, और ग्रीन कलर में आपके कमांड्स हैं, काफी सारे कमांड्स हैं। अब देखो आप स्क्रॉल नहीं कर पाए ना ऊपर तक, स्क्रॉल नहीं कर पाए ऊपर तक, सारे कमांड्स नहीं देख पाए, तो आप क्या कर सकते हो, स्लैश ls पाइप मोर, ls पाइप मोर से क्या फायदा होगा कि आप सारे कमांड्स को पेज बाय पेज लिस्ट कर सकते हो। अगर नेक्स्ट पेज पे जाना, नेक्स्ट लाइन पे जाना है पेज में तो एंटर प्रेस करते रहोगे, और नेक्स्ट पेज पे जाना है तो स्पेस बार, स्पेस बार मैं प्रेस कर रहा हूं तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। ये मैं जो प्रेस कर रहा हूं अभी स्पेस बार प्रेस कर रहा हूं, तो मोर पेजर में ये फायदा है। ठीक है, और सपोज मेरा काम हो गया, मैं बाहर आना चाहता हूं, अभी ये फाइल चल ही रहा है, जो उसका आउटपुट है वो चल रहा है, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा बाहर आ जाएंगे, और बीच में बाहर आना चाहते हो यू विल प्रेस क्यू। जैसे कि मैं कोई फाइल आपको खोल के दिखाता हूं, स्लैश जैसे stdio.h खोल लेते हैं, तो स्लैश यूएसआर स्लैश इंक्लूड, क्योंकि मुझे कंप्लीट पाथ नेम देना पड़ेगा stdio.h का, stdio.h का कंप्लीट पाथ है स्लैश यूएसआर स्लैश इंक्लूड stdio.h। तो ये फाइल जो है 2% खुला है अभी, देखिए मोर में 2%, अब मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ 4%, 6%, 7%, तो आप यहाँ मोर पेजर में अभी ये कितना परसेंट खुल गया, 35%। तो stdio.h को मैं, और अगर मैं h प्रेस कर रहा हूँ अब मोर पेजर में, h फॉर हेल्प, तो ये हेल्प खुल जाएगा, इसमें मुझे बताएगा कि मोर पेजर में मैं कैसे काम कर सकता हूँ। कि इसमें दिखा रहा है ना कि स्पेस आप दोगे तो डिस्प्ले नेक्स्ट के लाइंस ऑफ टेस्ट, मतलब स्पेस बार प्रेस करूंगा तो। ठीक है, अगर मैं क्यू प्रेस करूंगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा मोर से। ठीक है, अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो एक एक लाइन से आगे जाऊंगा। ठीक है, बी प्रेस करूंगा तो, समझ गए, तो इस तरह से जो है ये एंटर प्रेस कर रहा हूं, अब 52% खुल गया फाइल, और स्पेस बार से ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, बी प्रेस करूंगा तो पीछे जाऊंगा, बी प्रेस कर रहा हूं अभी मैं, बैक तो पीछे जा रहा हूं। ठीक है, ये आगे जा रहा हूं। तो बड़ी फाइल्स को व्यू करने के लिए
आप मोर और लेस पेजर यूज कर सकते हो। अभी 85% फाइल ओपन है, मतलब 85% फाइल डिस्प्ले हो रहा है। क्यू प्रेस करूंगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, मैं 100% उसको जो मेरे को ढूंढना था मिल गया फाइल में, तो मैं क्यू प्रेस करके बाहर आ सकता हूँ। समझ गए? तो ये मोर अलग से एक यूटिलिटी है। मोर इज अ डिफरेंट यूटिलिटी एंड एलएस इज अ डिफरेंट यूटिलिटी। तो अगर दोनों में हमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कराना है तो हम पाइप यूज कर सकते हैं कि एलएस अपना आउटपुट मॉनिटर पे नहीं लिखेगा, पाइप पे लिखेगा, और मोर अपना इनपुट फाइल से नहीं लेता किसी। अगर मोर के साथ फाइल नेम देते हैं तो फाइल से लेता है ना अपना इनपुट, लेकिन फाइल से नहीं ले रहा, वो पाइप के इनपुट को इनपुट ले रहा है और आउटपुट जो है मॉनिटर पे देगा। समझ गए? सीडी भी आपको समझ में आ गया। बिन में क्या है ये दिखा दिया। ईटीसी में देखते हैं क्या है। एनी डाउट अबाउट बिन? बिन में आपकी डायरेक्टरीज हैं और एग्जीक्यूटिबल्स हैं ग्रीन कलर में। ठीक है, यूएसआर बिन में भी यही है, और सीडी स्लैश बिन। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सर एक बार वो रिलेटिव पाथ नेम और डायरेक्ट पाथ नेम में थोड़ा सा फर्क बता देना फिर से एक बार। Relative path name means relative to present working directory, or absolute path name means complete path name means from the root directory. मतलब जैसे अब मैं अपनी डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ, नहीं, ओएस बॉक्सेस के डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूँ यहाँ से स्लैश बिन से, तो वैसे तो होम डायरेक्टरी में जाने के लिए कमांड है सीडी। सीडी विदाउट एनी ऑप्शंस में अपनी होम डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। ठीक है, अब डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूं तो मैं सीडी डेस्कटॉप लिखूंगा ना, तो डेस्कटॉप पे चला जाऊंगा। डेस्कटॉप को कंप्लीट करना चाहते हैं ना हम, तो टैब दबा देते हैं, डीई लिख के टैब दबा देते हैं, तो कंप्लीट हो जाता है पाथ नेम। ठीक है, डेस्कटॉप पे आ गया। अब सपोज मैं अभी मैंने रिलेटिव पाथ नेम दिया, डेस्कटॉप इज अ रिलेटिव पाथ नेम, लेकिन जैसे मैं रूट पे हूं, अब मैं रूट पे हूं, ठीक है, अब मैं डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूं, तो क्योंकि सीडी, अगर मान लो सीडी होम डायरेक्टरी में स्विच नहीं करता है हमको, एक बार मान लो कि सीडी होम डायरेक्टरी में स्विच नहीं करता है, तो मुझे कंप्लीट पाथ नेम देना ही पड़ेगा, सीडी स्लैश होम स्लैश ओएस बॉक्सेस स्लैश डेस्कटॉप। ठीक है ना, वो कंप्लीट पाथ नेम हो गया डेस्कटॉप का, सीडी स्लैश होम स्लैश ओएस बॉक्सेस स्लैश डेस्कटॉप। लेकिन सपोज मैं इधर होम डायरेक्टरी में हूं, अब मैं बिन में जाना चाहता हूँ, यूएसआर बिन में जाना चाहता हूँ, या यूएसआर इंक्लूड में जाना चाहता हूँ, तो यूएसआर इंक्लूड में जाना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे कंप्लीट पाथ नेम ही देना पड़ेगा। या तो मैं ऐसा करूं, एक तरीका है सीडी स्लैश यूएसआर स्लैश इंक्लूड लिख दूं, दैट इज सिंपलर ना, या फिर मैं ऊपर जाऊं, रूट तक चला गया, रूट आ गया ना, अब मैं लिख दूं रिलेटिव पाथ नेम। अब लिख रहा हूं सीडी यूएसआर, तो ये रिलेटिव पाथ नेम है, सीडी इंक्लूड, तो ये रिलेटिव पाथ नेम है। ठीक है, एलएस किया, अब ये सारी आपकी हेडर फाइल्स इसमें रखे हुए हैं, यूएसआर स्लैश इंक्लूड में हेडर फाइल्स है जो आप यूज करते हो ना, हेडर फाइल्स stdio.h, math.h, pwd.h, ये सब हेडर फाइल, fcntl.h, ये सब इसमें रखे हुए हैं यूएसआर इंक्लूड में। ये आप यूज करोगे, जैसे fcntl.h यूज करोगे, ठीक है, malloc.h यूज करोगे। ठीक है सर, समझ गया। अब cd स्लैश etc कर लेते हैं।
ETC में जितने भी हैं दे आर, इनको खोल के देखते हैं, जैसे PassWD को खोल के देखते हैं। अब PassWD क्या है इधर, रिलेटिव पाथ नेम, और मैं PassWD चाहता तो वहां भी खोल सकता था ना, अपनी होम डायरेक्टरी में भी, मतलब मैं होम डायरेक्टरी में जाके भी PassWD खोल सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे कंप्लीट पाथ नेम देना पड़ेगा। मतलब आइदर रिलेटिव या कंप्लीट पाथ नेम मुझे फाइल नेम आर्ग्यूमेंट्स के साथ देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये PassWD फाइल मैंने कल भी आपको बताया था, मतलब लेक्चर में, कि इसमें आपके सारे यूजर्स की एंट्री है। जैसे जो भी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर क्रिएट करेगा, ये तो सिंगल यूजर मशीन ही है एक तरह से। ठीक है, जनरली तो लिनक्स क्या होता है, मल्टी यूजर मशीन होता है ना, तो जितने भी यूजर्स की एंट्री, यहाँ तो एक ही यूजर की एंट्री होगी, यहाँ तो एक ही यूजर की एंट्री होगी, दैट इज OS बॉक्सेस, जो एडमिनिस्ट्रेटर ने किया है। ठीक है, कि OS बॉक्सेस एक यूजर क्रिएट कर दिया, उसका पासवर्ड है osboxes.org, और ये UID है 1000, ग्रुप आईडी भी 1000 है, यूजर नेम osboxes.org है, और ये मेरी होम डायरेक्टरी है /home/osboxes, और /bin/bash मेरी लॉगिन शेल है। ठीक है, तो एक ही यूजर एक्चुअली, बाकी तो सिस्टम ने क्रिएट किए हैं, ये सारे यूजर बाकी सिस्टम ने क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो इसमें मेन आपको, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि लिनक्स जनरली मल्टी यूजर होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर सब यूजर्स के अकाउंट बनाएगा, तो सबके जो है UID JID प्रोवाइड होंगे, लॉगिन शेल एंड होम डायरेक्टरी उसे प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट यूजर है आप देख रहे हो, ये रूट, मैंने बताया था ना एक सुपर यूजर रूट। रूट जो है जनरली प्रिविलेजेस नहीं रहता मल्टी यूजर सिस्टम पे, रूट का प्रिविलेजेस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के पास रहता है। लेकिन यहाँ पे हम ये सुबंटू में आप जो है sudo करके रूट प्रिविलेजेस ले सकते हो। ठीक है, तो रूट यूजर का UID GID 0 होता है, और उसका जो होम डायरेक्टरी होगा वो /root होगा, और लॉगिन शेल वही /bin/bash है, यूजर नेम रूट है। ठीक है, फिर डिमन है, ये सब यूजर्स तो खैर सिस्टम के ही है। ठीक है, सिस्टम प्रोसेस ही है ज्यादातर। तो कोई नया यूजर क्रिएट करता है एडमिनिस्ट्रेटर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से या कमांड प्रॉम्प्ट से, तो वो इसमें एंट्री आ जाएगा। तो इन फाइल्स को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही मॉडिफाई कर सकता है। जैसे मैं Ctrl+X करूंगा, अब बोल रहा है कि डू यू वांट टू मॉडिफाई, यस करूंगा तो ये नहीं, मना कर देगा। देखो मना कर दिया ना, क्योंकि मैं OS बॉक्सेस से लॉगिन किया है, sudo से नहीं किया ना, तो Ctrl+X करके मुझे नो ही करना पड़ेगा। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही इन फाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। जितने भी फाइल्स इसमें हैं दे कैन बी मॉडिफाइड बाय एडमिनिस्ट्रेटर ओनली। जैसे कौन सा सर्विसेज ऑन रखना है, कौन सा सर्विसेज ऑफ रखना है, उसके लिए एक सर्विसेज करके फाइल होगा। एस कहाँ पे है, ये रहा, सर्विसेज करके फाइल है। ठीक है, कि टेलनेट सर्विस ऑन रखना है, ऑफ रखना है, FTP सर्विस ऑन रखना है, ऑफ रखना है, तो ये वाला फाइल है। ठीक है, आपका fstab एक फाइल है कि मल्टी यूजर सिस्टम की तरह वर्क करेगा या सिंगल यूजर सिस्टम की तरह वर्क करेगा ये। तो इस तरह से हर फाइल का अपना यूज है। प्रोफाइल फाइल है, .profile फाइल। ठीक है, तो इनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे sudo लिख दूंगा मैं, sudo -s, तो I have to give the password, तो same password I will give, I am giving the password। ठीक है, मैंने पासवर्ड दिया वही osboxes.org। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड था OS बॉक्सेस का, वही पासवर्ड देना है। तो मैं रूट पे आ गया, देखो
अब मैं रूट यूजर OS boxes नहीं रहा ना, यूजर नेम इज नॉट नाउ OS boxes, इट इज नाउ रूट। ठीक है, अब मैं इसमें PWD देखूंगा तो क्या आएगा, PWD क्योंकि लॉगिन करते ही मेरी PWD क्या हो जाएगी, रूट पे लॉगिन करते ही इसमें PWD चेंज नहीं हुआ, लेकिन रूट प्रिविलेजेस मुझे मिल गया है। ठीक है, जैसे कि अब मैं पिको स्लैश etc स्लैश शैडो, इस फाइल को वैसे आप जो है रीड नहीं कर पाते, लेकिन रूट प्रिविलेजेस से आप रीड कर सकते हो। सर हाँ, सर थोड़ा आप मतलब ऐसा लग रहा है बहुत आगे निकल गए, कई सारी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तो आप रोको ना मुझे, ओके सर। 2 लोग चल रहे हैं, मैं तो बहुत धीरे चलता हूँ। जब चलता हूँ मैं बहुत धीरे चलता हूँ, बहुत मोटा हूँ मैं। तो कोई भी फैकल्टी मेरे साथ चलता है तो मैं उसे रोकता रहता हूँ, धीरे चल धीरे चल धीरे चल धीरे चल। मैं बहुत मोटा हूँ। सर टाइपिंग कर लो फिर। नहीं, लेकिन अभी तो ये एग्जाम्पल दिया है तो आप धीरे चलाओ मुझे। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं। LS हुआ है अभी तक, अब तक क्या क्या हो गया, एक्सक्यूज मी, थोड़ा वेट करो। क्या है ये, क्लासेस शुरू हो गई क्या? लैब लैब कौन सी वो है? अच्छा, अभी तक हमने इसमें क्या क्या डिस्कस कर लिया, देखो ये डिस्कस कर लिया। सी द कंटेंट्स ऑफ पाथ वेरिएबल यूजिंग इको $path. What is the significance of path variable? What is the purpose of path variable? That the shell searches for executable in the directories declared in the path variable. आपको ये लिखना पड़ेगा कि इको $path से आपको क्या कंटेंट दिख रहा है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये एडिट ए फाइल इन VI एडिटर, ये तो हटा ही दो, डिलीट मार दो इसे, क्योंकि VI एडिटर फालतू है। फालतू मीन्स वो काफी जब हमारे पास सिंपल एडिटर्स हैं तो हम सिंपल एडिटर्स में ही काम कर लें। ठीक है, फिर ये लिखा है देखो, यूज cd कमांड विथ रिलेटिव पाथ नेम एंड एब्सोल्यूट पाथ नेम टू ट्रेवर्स द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ यूनिक्स। ये भी हमने किया, अभी ट्रेवर्स किया ना, पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया तो मैंने पिछली क्लास में था व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन अभी इसको ट्रेवर्स किया कमांड से। Also see the listing of following standard directories of Unix कि /etc में क्या है। It consisting of administrative files. इनको administrative files इसीलिए कहते हैं because only administrator can modify them. bin में USR bin में क्या है, executable files. dev में क्या है, device files. चलो dev की files में अभी नहीं दिखा रहा, तो कुछ और कमांड्स बता दूंगा उससे अच्छा। ठीक है, TMP में टेम्पररी फाइल्स, और SBIN USR SBIN में भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ही है। ठीक है, फिर बाद में अभी कमांड्स इधर देखो क्या रह गए, ls-l रह गया, pwd हो गया, cd हो गया, cp हो गया, mkdir दिखाना है डायरेक्टरी बनाने के लिए, rm रिमूव करने के लिए, cat wc passwd तो पासवर्ड चेंज करने के लिए होता है, वो जरूरत नहीं है, मैन की भी कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं ये दिखाता हूँ आपको, पाइप मैंने आपको बताया था, पाइप भी बताता हूँ। पहले ls-l एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, cd में हम अपनी डायरेक्टरी में आ जाते हैं।
अगर मुझे इससे रूट से एग्जिट होना है तो अब मैं OS बॉक्सेस ही यूजर हूँ. नाउ आई एम नॉट ए रूट यूजर. ठीक है. ls-l. ls-l के आउटपुट में क्या आता है? फर्स्ट इज टाइप ऑफ फाइल. ये जो फर्स्ट कैरेक्टर आपको दिख रहा है दैट इज टाइप ऑफ फाइल. वैसे तो डायरेक्टरीज दे आर इन ब्लू कलर, बट वो दिखाएगा भी कि दे आर डायरेक्टरीज. ठीक है. और रेगुलर फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए वो एक सिंपल डैश दिखाएगा. ठीक है. फर्स्ट कैरेक्टर. जैसे कि आप अगर देव में जाके देखोगे तो टाइप ऑफ फाइल क्या दिखेगा? स्लैश देव में जाता हूं, अगर मैं स्लैश देव में चला गया और ls-l करता हूं. ls-l के साथ मुझे पाइप मोर करना अच्छा रहेगा, जिससे पेज बाय पेज आउटपुट दिखे. तो सब में देखो टाइप ऑफ फाइल क्या दिखा रहा है. डी तो डायरेक्टरी हो गया, सी करेक्टर डिवाइस, और कई जगह दिखाएगा बी दैट इज ब्लॉक डिवाइस. ठीक है ना. मतलब जो डिवाइसेस होते हैं दे आर आइदर करेक्टर डिवाइस और ब्लॉक डिवाइस. तो ये भी टाइप को आइडेंटिफाई ओएस करता है. एग्जीक्यूटेबल को आइडेंटिफाई करता है, रेगुलर फाइल को आइडेंटिफाई करता है, डायरेक्टरी को आइडेंटिफाई करता है, डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है. क्यों करता है ये अभी बाद में हम पढ़ेंगे इस चीज को. मैंने ये तो आपको बताया था ना किसी लेक्चर में कि कुछ पर्टिकुलर फाइल टाइप्स को ओएस आइडेंटिफाई करता है. ठीक है. तो अभी हमने देखे ना वो फाइल टाइप्स, डिवाइस फाइल को, डायरेक्टरी को, रेगुलर फाइल को, एग्जीक्यूटेबल को, और एक आपको एल दिखा होगा. एल ये लिंक है. लिंक जो हमारे विंडोज में सॉफ्ट लिंक होते हैं ना, इसी तरह लिनक्स में ये लिंक सॉफ्ट लिंक्स होते हैं. एल इसको भी आइडेंटिफाई करना वो इसको जरूरी है. तो वापस मैं होम डायरेक्टरी पे आ रहा हूँ, वापस मैं ls-l चला रहा हूँ. ठीक है. तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया बेटा? टाइप ऑफ फाइल. ठीक है. जो NAS3 है, ये NAS3 RWX दैट इज corresponding टू ऑनर. मतलब जैसे मैंने first.c फाइल लिखा था तो इसमें रीड राइट परमिशन है ऑनर के पास. ठीक है. first.c की ग्रुप के पास भी रीड राइट परमिशन है, और अदर्स के पास सिर्फ रीड परमिशन है. अदर यूजर्स के पास, मतलब अगर हम इसे मल्टी यूजर सिस्टम कंसिडर करें तो मान लो रावत भी एक यूजर है और रॉय भी एक यूजर है. ठीक है. तो रावत की होम डायरेक्टरी क्या होगी? जब एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा /home/रावत देगा, और रॉय को क्या देगा बेटा? /home/रॉय. ठीक है ना. आपको समझ में आ रहा है? यस सर. तो अब क्या होगा कि रावत जो है ना रॉय की डायरेक्टरी में ही नहीं जा पाएगा, क्योंकि डायरेक्टरी में एक्स परमिशन का मीनिंग होता है, डायरेक्टरी में जो एक्स परमिशन होती है ना उसका मीनिंग होता है कि फाइल्स के लिए तो आपको क्लियर है, रीड परमिशन यानी यू कैन रीड दैट फाइल, राइट परमिशन मींस यू कैन राइट दैट इनटू दैट फाइल, एक्स मींस यू कैन एग्जीक्यूट दैट फाइल. जैसे एडोट आउट का एक्स परमिशन होगा, लेकिन डायरेक्टरी में रीड राइट ये RWX का मीनिंग अलग है. डायरेक्टरी में RWX का मीनिंग आप लिख सकते हो चाहे अपनी कॉपी में. R का मीनिंग है कि यू कैन डू ls फॉर दैट डायरेक्टरी. अगर रीड परमिशन होगा ना तभी आप उसके लिए ls कर पाओगे, लिस्टिंग कर पाओगे. ठीक है. W होगा तभी आप उसमें क्रिएट और डिलीट फाइल्स कर सकते हो. ठीक है. और X परमिशन होगा तब आप उसमें CD कर सकते हो. अगर X परमिशन नहीं होगा ना किसी डायरेक्टरी का मेरे पास, तो मैं उसमें CD नहीं कर सकता. तो ये चीजें अभी क्या है मैं दिखा नहीं सकता आपको, क्योंकि इसमें क्या है सब कुछ डायरेक्टरीज का X परमिशन. एक बार मैं रूट पे जाके देखता हूँ, कुछ दिखा सकता हूँ क्या. सभी डायरेक्टरीज का X परमिशन मेरे पास है एक्चुअली. देखो अदर्स के पास सभी का X परमिशन है ना, क्योंकि ये उबंटू है ना.
अगर ये रेडिट होता जिसपे मल्टीपल यूजर काम कर रहे होते तो उस तरह का प्रोविजन रखता है एडमिनिस्ट्रेटर कि रॉय को रावत की डायरेक्टरी का एक्स परमिशन ही नहीं देगा, तो वो रॉय की उसमें जा ही नहीं सकता, रॉय की डायरेक्टरी में ही नहीं जा सकता, उसमें एलएस मतलब क्रिएट डिलीट फाइल्स क्या करेगा, ये तीनों ब्लैंक रहते हैं, ठीक है ना। उसका ऑनर कौन रहता है, जैसे यहाँ तो रूट ऑनर है इन सब डायरेक्टरीज का, ठीक है। और अगर मैं वापस आ जाता हूँ अपनी होम डायरेक्टरी में और ls-l करता हूँ तो सबका ऑनर मैं हूँ, ओएस बॉक्सेस है, ठीक है। तो एक्चुअली जब एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे आपके क्लास के सारे बच्चों के अकाउंट बना रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, तो सबका यूजर नेम अलग अलग होगा, रॉय, रावत, सिंगल, ठीक है, सबका या रोल नंबर से होगा आपके, और ग्रुप एक ही रख लेगा। तो ग्रुप की परमिशन ये हैं, बीच वाले 3 जो हैं वो ग्रुप के हैं, और लास्ट वाली 3 जो करेक्टर्स हैं ये अदर्स के हैं। अदर्स में सारे यूजर आ गए, ठीक है। ये ग्रुप भी मेरा ओएस बॉक्सेस है, यहाँ यूजर आईडी भी ओएस बॉक्सेस है। तो इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस हमें इसलिए भी नहीं देख सकते बिकॉज इट इज अ सिंगल यूजर मशीन पे ही हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये मल्टी यूजर होता तो इन परमिशंस का कुछ मीनिंग हमें समझ में आता, ठीक है। लेकिन हम इन परमिशंस को चेंज कर सकते हैं, परमिशंस जो है ना इनको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए कमांड है chmod, वो कमांड मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले और चीजें बता दूं। जो उसके बाद दिया हुआ है देखो ये 1 2 3, ये क्या है बेटा, ये 1 2 3 है लिंक काउंट, कि इसके कितने लिंक है, कितने डिफरेंट नेम्स है। जैसे हमारा मैंने बोला था ना अभी सॉफ्ट लिंक, तो अभी F1 का एक ही लिंक है, और डायरेक्टरी के हमेशा 2 लिंक मिनिमम होंगे, 2 मिनिमम होगा डायरेक्टरी का लिंक काउंट, क्योंकि डेस्कटॉप के 2 नाम है। क्या क्या 2 नाम है डेस्कटॉप के, एक तो डॉट, एक तो डॉट है ना डेस्कटॉप का नाम, जब हम डेस्कटॉप में रहेंगे तो डॉट से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों, क्यों बेटा, जब डेस्कटॉप में है तो एक नाम तो इसका क्या है, /home/os boxes/desktop, और दूसरा नाम क्या है इसका, डॉट। डॉट कब है इसका नाम, जब हम डेस्कटॉप में है, जब हम डेस्कटॉप में है तब इसका नाम क्या है, डॉट है ना, ठीक है। अब जैसे डॉक्यूमेंट्स में 3 लिंक काउंट क्यों दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट्स में 3 लिंक काउंट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अंदर जरूर से कोई डायरी, ओ सॉरी मैं डेस्कटॉप में सीडी डॉक्यूमेंट्स कर रहा था, तो नो सच, और टैब दबा रहा था मैं बार बार, तो कंप्लीट नहीं हो रहा था पाथ में, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉक लिखते ही टैब दबा दो, कंप्लीट हो जाता है पाथ में, ठीक है। अब मैं डॉक्यूमेंट्स में आ गया, अब देखो यहाँ एक डायरेक्टरी है, इसलिए इसका इसका लिंक काउंट कितना दिखा रहा है, 3, क्योंकि इसके 3 नाम हो गए। इसके 3 नाम क्या क्या हो गए बेटा, कोई बताएगा, कोई लड़का बताएगा इसके 3 नाम क्या क्या हो गए, थोड़ा दिमाग लगाओ। डेस्कटॉप में कोई डायरेक्टरी नहीं थी इसलिए उसका लिंक काउंट कितना दिखा रहा था, 2 डॉट, और एक दूसरा नाम था /home/os boxes/desktop। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्योंकि एक डायरेक्टरी है तो उसका लिंक काउंट है 3, तो इसके 3 डिफरेंट नेम्स कौन से हैं, कौन बताएगा, अमन गोला, अमृत खरबंदा, यादव। तो तीसरा ये हो सकता है कि /home/document/ns ऑल इन वन 2.35 ये हो सकता है। नहीं, तीसरा ये कैसे, वो तो एनएस का नाम हो गया, एनएस के अंदर हो तो उसका नाम क्या रहेगा डॉक्यूमेंट्स का, ऑल इन वन 2.35। एनएस, ये ऑल इन वन 2.35 के अंदर आप हो तो डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे बुलाओगे, डॉक्यूमेंट्स को आप क्या नाम रख सकते हो, तब cd डॉट डॉट करेंगे प्रीवियस में जाने के लिए। तो यानी डॉट डॉट हो गया ना,
हाँ यस सर। तीसरा हो गया। अभी इसका बेटा हो गया। अभी मेरा उमाशंकर ही नाम था पहले, ठीक है। अब जो है मेरा बेटा है ना, तो वो पापा बुलाता है मुझे, उमाशंकर नहीं बुलाता। पापा बुलाता है ना, तो मेरे दो नाम हो गए, पापा और एक पति। तो पति ये सब ऑलरेडी है, डॉट तो ऑलरेडी है, एक रूट डायरेक्टरी से है, और एक तीसरा डॉट डॉट हो गया, तीन नाम हो गए। तो डायरेक्टरी का लिंक काउंट कभी भी 2 से कम नहीं होता। किसी भी डायरेक्टरी का आप देखोगे लिंक काउंट 2 या 2 से ज्यादा ही होगा, और रेगुलर फाइल का लिंक काउंट शुरू में एक ही होगा जब तक आप उसका लिंक ना बनाओ। तो ठीक है? जैसे हम डेस्कटॉप में थे, तो अगर हम जैसे हम तारा.l खोलते हैं, तो उसके बाद अगर हम cd डॉट डॉट करें तो हम डेस्कटॉप में नहीं पहुंचेंगे? क्या? वापस बोलो बेटा। जैसे अभी मैं डॉक्यूमेंट्स में हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? सर एक बार जैसे हम डेस्कटॉप में थे, अगर हम डेस्कटॉप से तारा.l में जाते। एक सेकेंड, डेस्कटॉप में चला जाऊं। तारा.l डायरेक्टरी नहीं है ना बेटा, रेगुलर फाइल है। अच्छा, मतलब अगर डायरेक्टरी से हम अपना ओरिजिनल पाथ पे जाए तो तब उसको कहते हैं हाँ, डायरेक्टरी। तारा.l तो पिको करेगा, हाँ पिको ओके सर, करेगा ना तारा.l को, समझ तो सीडी तो नहीं कर सकता। समझ गया सर। सॉरी सर, रेड कलर का मीनिंग क्या है? रेड कलर का मीनिंग आपने उस समय नहीं पूछा, उस समय मैंने मौका दिया था आपको। ध्यान नहीं दिया होगा किस में मौका दिया था? सर। मैं स्लैश बिन में। इसमें मैं बार बार बोल रहा था ब्लू कलर और ग्रीन कलर, आप कोई भी रेड कलर नहीं देखा। लेकिन खैर ये रेड कलर का अलग मीनिंग है, और जो ये रेड कलर है, कहाँ था वो? डॉक्यूमेंट्स में। यस सर। तो अब डॉक्यूमेंट्स में जाना है, मैं तो cd डॉट डॉट स्लैश डॉक्यूमेंट्स कर दूंगा। ये तो वो है बेटा, टार फाइल, मतलब जिप फाइल है। जिप फाइल है इसलिए रेड कलर में है, ओके सर। मतलब डायरेक्टरी को जिप किया है इसलिए रेड कलर में है। gzip कमांड है, टार कमांड है, वो हमने देखे थे बिन में, वो मैंने फाइल में भी लिखे हैं। ये फाइल में जितने लिखे हैं मैंने सुमित्वा दास के सीक्वेंस में लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें मिलेगा आपको जिप और ये सब, ये लिखा है ना gzip टार, तो मतलब कि ये किसी आगे के चैप्टर में मिलेगा। मतलब ये काफी सारे चैप्टर्स से लिखे हैं कमांड्स, तो शुरू से है, मतलब काफी सारे चैप्टर्स में ये मिलेंगे। इनको समझाते समझाते कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे, इन कमांड्स को समझाते समझाते। जैसे ls-l में ही इतना टाइम लग गया। और ये जो रेड है इसका अलग मीनिंग है। ये रेड इसलिए है क्योंकि ये है तो एग्जीक्यूटेबल सी, लेकिन इनको सुपर यूजर्स एक्चुअली जैसे कि su है, u माउंट है, माउंट है। माउंट किसी डायरेक्टरी को माउंट करने के लिए होता है। तो या अगर मैं माउंट करना चाहूंगा सपोज, mount /usr on home current directory, तो only root can do that, ठीक है। मतलब ये कमांड्स जो है तो कमांड सी है, कमांड नॉट फाउंड नहीं दिया ना, कमांड सी है, लेकिन इनको रूट प्रिविलेजेस चाहिए, ठीक है। तो मुझे sudo लिख के करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली मल्टी यूजर सिस्टम पे क्या होता है, su को तो नहीं कर सकता कोई, su को तो कोई एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, लेकिन माउंट आप कर पाते हो। वहां पे आपको रूट प्रिविलेजेस के बिना भी माउंट कर पाते हो एक्चुअली आप। तो क्या होता है कि जब आप माउंट कमांड चलाते हो उस ड्यूरेशन के लिए आपको ऑटोमेटिकली रूट प्रिविलेजेस मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि आप ls-l
स्लैश बिन स्लैश माउंट करोगे तो आप ये देखो इधर एस बिट इसके सेट है, इसमें एक्स नहीं है। मतलब किसी भी यूजर को, रूट यूजर इसका तो, ये उबंटू का नहीं बात कर रहा, उबंटू में तो सूडो करके माउंट कर ही लेते हैं आप, सूडो करके आप रूट बन रहे हो, है ना। तो रूट यूजर के लिए देखो एस बिट सेट है। उसी तरह आपके जो बाकी मल्टी यूजर सिस्टम लिनक्स है, रेड हैट वगैरह, उसमें भी आप सबके लिए, मतलब जैसे रावत के लिए, रॉय के लिए, सबके लिए एस बिट सेट होता है माउंट का, ठीक है। तो एस बिट सेट होने से क्या होता है, एक्स नहीं है, दिस इज एस। तो जब वो यूजर लॉगिन कर, मतलब यूजर इसको एग्जीक्यूट करता है, तब वो उस ड्यूरेशन के लिए, उस कमांड की ड्यूरेशन के लिए उसको रूट प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। आप समझे मेरी बात? ये एक्स नहीं है, एस बिट अलग है, ठीक है, एक्स अलग है। तो मैंने एस बिट बताया, RWX बताया, डायरेक्टरीज में RWX का मीनिंग बताया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल बताए, उसके बाद लिंक काउंट बताया। लिंक एक बना देता हूं मैं फर्स्ट डॉट सी का, ln-s है कमांड लिंक बनाने के लिए, फर्स्ट डॉट सी। और सपोज मैं इसको लिंक इसका क्रिएट कर रहा हूं डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर F1 नाम से, ठीक है। तो अब जो है डेस्कटॉप पे आप देखोगे F1, ये लिंक बन गया इसका। ये लिंक जो है, दिस इज नथिंग बट, जैसे सॉफ्ट लिंक होते हैं ना विंडोज में, वैसे ही ये लिंक बन गया। बट इस टाइप ऑफ फाइल को ओएस को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये लिंक है। क्यों? जो अब मैं देखो जाके देखूंगा ना, या इधर से ही देख लेता हूँ, ls-l/desktop डेस्क, ओ सॉरी, स्लैश नहीं लगाऊंगा ना, सिर्फ डेस्कटॉप लिखूंगा, डेस्कटॉप F1। तो आप ये देखिए, इट इज अ लिंक टाइप ऑफ फाइल। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या दिखा रहा है, एल, लिंक टाइप ऑफ फाइल, ठीक है। और इस लिंक का कंटेंट्स क्या है, इसमें वो फर्स्ट डॉट सी के कंटेंट्स नहीं है। F1 में क्या लिखा हुआ है, F1 में desktop/F1 में सिर्फ फर्स्ट डॉट सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये रेगुलर फाइल की तरह ट्रीट करता हुआ है, तो आपको क्या डिस्प्ले कर देगा? अगर आप पिको ये करते हो तो आपको क्या शो करना चाहिए? फर्स्ट डॉट सी के कंटेंट शो करने चाहिए ना। क्या हुआ? फर्स्ट डॉट सी का लिंक हमने बनाया था। ये खाली क्यों आ रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, खाली क्यों आ रही है फाइल्स?
F1 F2 खाली क्यों आ रहे हैं? F1 is pointing to first dot C, F2 is pointing to first dot C, लेकिन ये खाली क्यों दिखा रहा है? चलो ये मैं बाद में देखता हूँ, ये खाली नहीं दिखाता उसके कंटेंट्स, क्योंकि ये उसके कंटेंट्स को ओपन करेगा, क्योंकि लिंक टाइप ऑफ फाइल दे रखा है, तो OS आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये लिंक है, यानी इसके कंटेंट्स जो कि फर्स्ट डॉट सी है उसको नहीं डिस्प्ले करना है, रेदर फर्स्ट डॉट सी को ओपन करना है। फर्स्ट डॉट सी, अच्छा फर्स्ट डॉट सी इस डायरेक्टरी में नहीं है इसलिए खाली आ रहा है, लगता है मुझे उसी डायरेक्टरी में लिंक बनाना चाहिए था। फर्स्ट डॉट सी इसने क्या किया, खुद ने क्रिएट कर दी, यहाँ पे उसके कंटेंट्स कुछ भी नहीं है। कैट कर लेते हैं, कैट, ये खाली है ना, वो उसने उसका मतलब उसने फाइल भी क्रिएट कर दी, उसका लिंक भी बना दिया, मुझे ऊपर ही करना चाहिए था, डेस्कटॉप में लिंक नहीं, उस करंट डायरेक्टरी में ही बनाना चाहिए था। ठीक है, फर्स्ट डॉट सी के कोई लिंक नहीं बने, मैं अब वापिस बना रहा हूँ। F2, अब कैट F2 करेंगे, कैट होता है फॉर डिस्प्लेइंग द फाइल कंटेंट्स। ठीक है, तो देखो कैट F2 यानी कि वो लिंक बन गया। अब ls-l करोगे तो आपको यहाँ F2 का दिखाएगा कि इट इज अ लिंक टाइप ऑफ फाइल, और F2 के अंदर जो कंटेंट शो करेगा वो फर्स्ट डॉट सी के करेगा। मतलब इसको आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज तो इसका फाइल साइज 7 बाइट्स है ना, ये जो नेक्स्ट कॉलम है दैट इज फाइल साइज इन बाइट्स, तो इसका फाइल साइज तो 49 बाइट्स था फर्स्ट डॉट सी का। ठीक है, और फर्स्ट डॉट सी जो F2 का फाइल साइज है दैट इज 7 बाइट्स। 7 बाइट्स मींस 1 2 3 4 5 6 7, because only first dot C is written in F2. ठीक है, तो it will not display, OS will not display the contents of F2, that is first dot C. Rather it will open first dot C because it is a link type of file. इसलिए आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ठीक है, इससे लिंक काउंट इंक्रीज नहीं होगा, सॉफ्ट लिंक से इंक्रीज नहीं होता लिंक काउंट, हार्ड लिंक से इंक्रीज होता है। उसके लिए कमांड है ln first dot C F3 ls-l, तो लिंक काउंट कितना हो गया फर्स्ट डॉट सी का 2, लिंक काउंट हो गया 2, तो इसका दूसरा जो लिंक बना है वो है F3 का भी लिंक काउंट 2 है। ठीक है, ये हार्ड लिंक है, हार्ड लिंक सिर्फ लिनक्स में होते हैं, ये विंडोज में नहीं होते। विंडोज के जो शॉर्टकट्स हैं दे आर सेम एज दैट ऑफ सॉफ्ट लिंक हियर, ln-s। ठीक है, लिंक काउंट जो दिखा रहा था वो डिफरेंट नेम्स, मतलब फर्स्ट डॉट सी और F3 ये दो नाम है, फाइल सेम है। हार्ड डिस्क पे ये दो अलग अलग फाइल थी, लिंक एक अलग टाइप की फाइल थी, ये हार्ड डिस्क पे क्रिएट हुई है, लेकिन F3 जो है हार्ड डिस्क पे क्रिएट नहीं हुई है। जैसे आप रिमूव करोगे ना rm कमांड से फर्स्ट डॉट सी को, फर्स्ट डॉट सी रिमूव हो जाएगी, लेकिन उसके कंटेंट्स हार्ड डिस्क से डिलीट नहीं होंगे, क्योंकि उसका लिंक काउंट 1 से कम हो जाएगा। जब तक लिंक काउंट 0 नहीं होता है, जब तक लिंक काउंट, अब आप लिंक काउंट देखोगे तो 1 कम हो जाएगा, F3 का लिंक काउंट 1 हो गया ना, तो जब तक ये लिंक काउंट, अब rm F3 करेंगे तब ये हार्ड डिस्क से रिमूव होगा। ठीक है, लेकिन सॉफ्ट लिंक्स को आप वैसे ही रिमूव कर सकते हो, सॉफ्ट लिंक्स को आप वैसे ही रिमूव कर सकते हो। तो हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक वापस भी ले लेंगे हम। तो ये जो है वो लिंक काउंट बता रहा है, ये आपका
यूजर नेम बता रहा है इस फाइल के कोरस्पॉन्डिंग, ये ग्रुप नेम मतलब UID CID, और ये जो कॉलम है दैट इज फाइल साइज इन बाइट्स। तो फाइल साइज जो है आप जो आपकी रेगुलर फाइल्स है उनका तो दिखाएगा अप्रोप्रिएटली जितने बाइट्स आप लिखोगे, और एग्जीक्यूटेबल का भी जो भी जितने भी बाइट्स हैं, और जो डायरेक्टरीज हैं उनका फाइल साइज आपको 4096 जनरली दिखाएगा। डायरेक्टरीज का फाइल साइज, क्योंकि एक डायरेक्टरी के अंदर बेटा क्या होता है, ये जैसे ls-i डायरेक्टरी के अंदर आइनोड नंबर और डायरेक्टरी नेम रहता है। ठीक है, ये आइनोड नंबर क्या है ये भी आगे आ जाएगा। तो इतना कंटेंट जो है एक ब्लॉक में आ जाता है। एक ब्लॉक 4096 बाइट्स का होता है। मतलब जो हमारा डिस्क है, जब हम इस पे फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं, डिस्क पे जब हम फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं, ये मैं बोर्ड से बता देता हूँ। ये सब बातें लेकिन काम की है लैब के पर्पज से, मतलब लैब फिर थ्योरी में भी काम आएंगी ये, जैसे जो भी बोर्ड पे बता रहा हूँ। सपोज ये आपकी फ्रेश डिस्क है, ठीक है। अब इस पे आप फाइल सिस्टम क्रिएट करोगे, तो फाइल सिस्टम क्रिएशन मीन्स जो कि आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से करो या कमांड लाइन इंटरफेस से करो, इट मीन्स द क्रिएशन ऑफ सर्टेन टेबल्स, creation of certain tables on secondary stories. That these tables are, why these tables are created? To keep track of files, that keep track of files, otherwise तो raw data हो गया ना आपका। ठीक है, तो आपका जो लिनक्स का फाइल सिस्टम है वो ext3 फाइल सिस्टम जैसे लिनक्स का है, या स्टैंडर्ड यूनिक्स का फाइल सिस्टम, दोनों का स्ट्रक्चर डिस्क लेआउट डिस्क लेआउट जो है थोड़ा सिमिलर सा है, जैसे कि स्टैंडर्ड यूनिक्स में, स्टैंडर्ड यूनिक्स का आपको कहाँ पे मिलेगा बेटा, फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, सॉरी डिस्क लेआउट स्टैंडर्ड यूनिक्स का मिलेगा चैप्टर 4 ऑफ मॉरिस बेक। मॉरिस बेक अच्छा बुक है एक्चुअली, डिजाइन ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी मैंने एक रेफरेंस दिया है। मॉरिस बेक जो है ज्यादा काम आएगा कमांड्स के बाद से, लैब 4 से जो है मॉरिस बेक आपको काम में आएगा लैब 4 से। ठीक है, तो ये जो डिजाइन ऑफ लिनक्स सॉरी डिजाइन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मॉरिस बेक, इसके चैप्टर 4 में आपको स्टैंडर्ड यूनिक्स का डिस्क लेआउट मिलेगा कि फर्स्ट ब्लॉक इज बूट ब्लॉक, ठीक है, सेकंड ब्लॉक इज सुपर ब्लॉक, फिर आइनोड टेबल, एंड देन डाटा एरिया। ठीक है, तो ये जब आप फाइल सिस्टम क्रिएट करते हो उस समय लॉजिकल ब्लॉक का साइज आप डिसाइड कर सकते हो। एक्चुअली फाइल जो आपका डिस्क होता है दैट इज मेड अप ऑफ सेक्टर्स, ट्रैक्स एंड सिलेंडर्स। सेक्टर्स, ट्रैक्स एंड सिलेंडर्स। ओके, ये तो आपको पता है ना, डिस्क इज मेड अप ऑफ सेक्टर, ट्रैक एंड सिलेंडर। और जो सेक्टर होता है, डिस्क इस तरह रहता है ना आपका, डिफरेंट सरफेसेस रहता है डिस्क पे, सरफेसेस रहते हैं सिलिंड्रिकल सरफेसेस, उसके एक सरफेस में फिर ट्रैक्स रहते हैं।
ठीक है, और फिर सेक्टर्स में डिवाइड रहता है। इसको हम कहते हैं फिजिकल फॉर्मेटिंग। फिजिकल फॉर्मेटिंग जब करते हैं तब आप डाटा स्टोर कर सकते हो, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइल। आप रॉ डाटा स्टोर कर सकते हो डिस्क पे, ठीक है। तो एक सेक्टर का साइज जो रहता है दैट इज 512 बाइट्स, 512 बाइट्स, ठीक है। अब जब आप फाइल सिस्टम क्रिएट करते हो, सेक्टर साइज इज 512 बाइट्स। When you create file system on the disk, then you can decide the size of logical block. इसको हम सेक्टर को कहते हैं फिजिकल ब्लॉक, ठीक है। दिस इज फिजिकल ब्लॉक इज ऑफ 512 बाइट्स। और लॉजिकल ब्लॉक साइज जनरली आप क्या करते हो, आप डिसाइड जब आप लिनक्स इंस्टॉल भी करते हो तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आपको देता है कि आप डिसाइड कर सको, ठीक है। लेकिन जनरली वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या देता है, 4096 बाइट्स, 4K 4096 बाइट्स, यानी कितने हो गए फिजिकल ब्लॉक्स, 8 इंटू 512 इज 4096, ठीक है। तो 8 इंटू 512 इज 4096। तो 8 फिजिकल ब्लॉक्स का एक लॉजिकल ब्लॉक बाय डिफॉल्ट हमारा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि डिस्क का साइज इतना ज्यादा होता है। तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 4096 है, ठीक है। तो अब जो भी डाटा एरिया में आपकी फाइल्स स्टोर होंगी वो इन लॉजिकल ब्लॉक्स में, ये 4096 बाइट्स के ब्लॉक्स है, इसमें स्टोर होगी। तो फाइल साइज तो एक्चुअल वो बता देता है ls-n, लेकिन डायरेक्टरी का साइज हमेशा 4096 इसीलिए बताता है क्योंकि डायरेक्टरी में क्या रहता है, डायरेक्टरी के एंट्री, डायरेक्टरी के जो कंटेंट्स होते हैं, डायरेक्टरी भी यहीं रखे हुए हैं, डायरेक्टरी भी डाटा एरिया में ही रखे हुए हैं, होम, यूएसआर, रूट। लेकिन रूट का साइज कितना होगा, 4096 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, ये डायरेक्टरीज के नाम रखे होंगे और उनके आइनोड नंबर रखे होंगे, तो ये 4096 बाइट से ज्यादा नहीं लेंगे। तो हर फाइल का अपना एक आइनोड नंबर होता है। तो अब जैसे आप लिखते हो, आप सपोज लिखते हो पिको /usr/ या आप होम ही ले लेता हूँ, /home/osboxes/f1। मतलब आप पिको f1 लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है, क्योंकि शेल को तो कंप्लीट करना ही है, ओएस को तो इस तरह ही काम करना है। तो ओएस बेटा क्या करता है कि सबसे पहले रूट का आइनोड रिट्रीव करेगा, रूट का आइनोड टेबल से रिट्रीव करेगा। अब वो फिक्स होता है आइनोड नंबर 2, तो आइनोड नंबर 2 को रिट्रीव करके वो मेन मेमोरी में लाएगा, ठीक है। अब आइनोड नंबर 2 में रूट डायरेक्टरी का ब्लॉक नंबर लिखा होगा कि एक्चुअली ये किस ब्लॉक नंबर में है, सपोज 100 पे है, तो 100 ब्लॉक नंबर को रिट्रीव करके ओएस मेमोरी में लाएगा, 100 ब्लॉक नंबर को ओएस रिट्रीव करके मेमोरी में लाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि डायरेक्टरी में क्या लिखा होता है, ये रूट डायरेक्टरी के कंटेंट्स है। तो कंटेंट्स में क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, क्या होता है बेटा कंटेंट्स में, डायरेक्टरी के कंटेंट्स में क्या होता है, कोई बताएगा, सो गए क्या? सर थोड़ा ज्यादा हो गया है। हाँ सर, थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। यस सर, जा- ज्यादा हो गया है। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ऐसा हो गया सर, ज्यादा ही ऊपर से निकलने लग गया अब तो। अभी तो एक कमांड चल रहा है ls-. सर आज के लिए खत्म कर लेते ना सर। देखो देखो डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, मैंने बताया था ना, फाइल नेम और आइनोड नंबर, डायरेक्टरी नेम है आइनोड नंबर। तो रूट में तो ज्यादातर डायरेक्टरीज ही है ना, बिन का आइनोड नंबर रहेगा, ईटीसी का आइनोड नंबर रहेगा, होम का आइनोड नंबर रहेगा। तो होम का आइनोड नंबर सपोज 7 है, तो ओएस क्या करेगा, 7 नंबर आइनोड को रिट्रीव करेगा यहाँ से। फिर सपोज होम डायरेक्टरी 200 ब्लॉक नंबर पे रखा है, तो 200 ब्लॉक नंबर को रिट्रीव करेगा। उसके अंदर होम के अंदर किसका आइनोड नंबर देखेगा, ओएस बॉक्सेस का। फिर ओएस बॉक्सेस का आइनोड रिट्रीव करेगा आइनोड टेबल से। उसके अंदर किसका आइनोड नंबर, सॉरी, पहले ओएस बॉक्सेस का ब्लॉक लेके आएगा मेमोरी में। समझ रहे हो ना मेरी बात, ये सारी बातें दोबारा भी आएंगी, लेकिन आप अभी समझ लो ना
कि ये सिंपल ही तो है भाई, आइनोड रिट्रीव करेगा, आइनोड के अंदर ब्लॉक नंबर लिखा हुआ है। फिर अब आइनोड की बात करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि आइनोड के अंदर क्या लिखा हुआ है। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया ब्लॉक नंबर लिखा हुआ है, ब्लॉक नंबर के अलावा और काफी सारी बातें आइनोड में होती हैं, वो अभी बता दूंगा। लेकिन ये तो सिंपल है ना, उसका ब्लॉक नंबर कहाँ है, यहाँ है डाटा एरिया में, उसका ब्लॉक रिट्रीव करके लाया मेमोरी में, फिर उस मेमोरी में ब्लॉक से देखा कि भाई ओएस बॉक्सेस का आइनोड नंबर क्या है, फिर ओएस बॉक्सेस का आइनोड रिट्रीव करके लाया, फिर उसका ओएस बॉक्सेस का ब्लॉक रिट्रीव करके लाया, फिर बाद में उसमें देखा F1 का आइनोड नंबर क्या है, फिर F1 को रिट्रीव करके लाया, आइनोड को F1 का आइनोड रिट्रीव करके लाया, सपोज 100 था F1 का आइनोड नंबर, तो 100 आइनोड नंबर को रिट्रीव करके लाया। अब 100 के अंदर उसके ब्लॉक नंबर्स लिखे होंगे ना फाइल के, फिर फाइल के ब्लॉक्स को रिट्रीव करेगा। समझ गए? मतलब आप इतना लिखते हो तो ओएस क्या क्या करेगा, ओएस को कितनी बार डिस्क पे जाना पड़ेगा, पहले रूट का आइनोड रिट्रीव करेगा, रूट का ब्लॉक रिट्रीव करेगा, फिर होम का आइनोड देखेगा, होम का आइनोड रिट्रीव करेगा, फिर बाद में होम का ब्लॉक रिट्रीव करेगा, फिर ओएस बॉक्सेस का आइनोड देखेगा, ओएस बॉक्सेस का आइनोड रिट्रीव करेगा, उसका ब्लॉक रिट्रीव करेगा, फिर F1 का आइनोड नंबर देखेगा, फिर F1 के ब्लॉक्स रिट्रीव करके आपको इस एडिटर में डिस्प्ले करेगा। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? नो सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हमें दो बातें क्लियर हो रही है। एक तो कि किसी भी डायरेक्टरी का साइज आपको हमेशा 4096 बाइट्स दिखाएगा। डायरेक्टरी के कंटेंट्स अगर आपको डिस्प्ले करने हैं तो ls-i यूज कर लो, जो ls-i दिखा रहा है वही उस डायरेक्टरी में लिखे हुए कंटेंट्स है, ठीक है। और आइनोड के अंदर बेटा क्या होता है, ये ब्लॉक नंबर के अलावा, ये ब्लॉक नंबर ही बोला ना, उसके अलावा क्या होता है, ये सब आइनोड में से ही आया है। ये जो ls-l के कंटेंट्स आए हैं आइनोड में से ही आए हैं। लेकिन अगर आप सारी बातें देखना चाहते हो आइनोड के अंदर क्या होता है, तो stat first.c, अच्छा first.c अब है ही नहीं, रिमूव कर दी थी मैंने, तो F3 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें आइनोड में होती है। आइनोड के अंदर ब्लॉक नंबर्स यहाँ शो नहीं करेगा, ब्लॉक नंबर्स किस ब्लॉक्स में F3 रखा हुआ है डिस्क पे वो शो नहीं करता स्टैट कमांड। बाकी सारी बातें उसके आइनोड में जो भी है वो सब लेके आ जाता है। क्या क्या बातें लाता है कि जो ls-l दिखा रहा था वो प्लस कुछ एक्स्ट्रा, जैसे ls-l ये हमें दिखा रहा था परमिशंस हमें दिखा रहा था, और कोई एक टाइम दिखा रहा था, लेकिन ये 3 टाइम दिखाता है, लास्ट एक्सेस, लास्ट मॉडिफाइड, लास्ट चेंज, ठीक है। लिंक काउंट दिखाता है, आईओ ब्लॉक साइज दिखाता है इसकी, क्योंकि इसकी साइज तो चाहे 49 बाइट्स ही है, लेकिन एक पूरा लॉजिकल ब्लॉक इसने ले रखा है, क्योंकि लॉजिकल ब्लॉक इज द मिनिमम यूनिट ऑफ अलोकेशन, ठीक है। ये ls-l भी दिखा रहा था हमें, लेकिन ये UID JID की वैल्यू भी बता रहा है, ठीक है। ये ls-i दिखा रहा था, लेकिन ये अलग से दिखा रहा है। और कितने फिजिकल ब्लॉक्स लग रहे हैं, ये तो हो गया लॉजिकल ब्लॉक, और फिजिकल ब्लॉक कितने लग रहे हैं, 8। और ये किस डिवाइस पे ये फाइल है ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये बाद में बता दूंगा। किस डिवाइस पे फाइल रखा हुआ है, उसका मेजर नंबर, माइनर नंबर, क्योंकि हर एक चीज डिवाइस है ना। ये जो फाइल सिस्टम है जहां पे ये फाइल रखा है वो भी एक डिवाइस है, वो भी एक डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है वो, ब्लॉक डिवाइस। कीबोर्ड, मॉनिटर, ये क्या है, कैरेक्टर डिवाइस। तो अगर इसका आप वो देखोगे मेजर नंबर, माइनर नंबर इस ब्लॉक डिवाइस का, तो 81 आपको मिलेगा। दिखाऊं मैं आपको, 1 सेकंड लगेगा। डीएफ किया तो मुझे जो है ये इसका एक ही पार्टीशन है इस डिस्क का, तो रूट पे ही हम है ना /dev/sda1, इसके लिए मुझे ls-l करना पड़ेगा, ls-l /dev
/SDA1। ठीक है, तो आपको इसमें ls-l में ये ब्लॉक डिवाइस है और फाइल साइज नहीं दिखाता क्योंकि सारे डिवाइस फाइल्स की साइज क्या होती है 0। तो उसकी जगह जो फाइल साइज वाला फील्ड था बाकी फाइल्स के लिए, डायरेक्टरी के लिए तो फाइल साइज दिखाता है, यहाँ रेगुलर फाइल के लिए फाइल साइज दिखाता है, यहाँ पे क्या दिखाता है मेजर नंबर और माइनर नंबर। तो मेजर नंबर है इसका 8 और माइनर नंबर है 1। ठीक है, तो जितने भी डिस्क के पार्टीशंस होंगे उनका मेजर नंबर सेम रहेगा। मेजर नंबर क्या आइडेंटिफाई करता है, डिवाइस ड्राइवर कौन सा सेलेक्ट होगा, डिवाइस ड्राइवर कौन सा सेलेक्ट करेगा। एक्चुअली ये आपके इसके ब्लॉक्स मिल गए। अब ओएस क्या देखता है, ओएस देखता है ये किस पे है, उसके आइनोड में से ब्लॉक नंबर तो देख लेगा, लेकिन ये ब्लॉक नंबर कहाँ से उठा के लाने हैं ओएस को, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो ओएस आइनोड में ही देख लेता है कि इस डिवाइस ड्राइवर को सिलेक्ट करना है, इस डिवाइस ड्राइवर को सिलेक्ट करना है टू रिट्रीव द कंटेंट्स ऑफ दिस ब्लॉक। तो उस डिवाइस ड्राइवर को सिलेक्ट करके कर्नल स्पेस में वो पूरा ब्लॉक उठा के लाता है, इस फाइल का पूरा ब्लॉक उठा के लाता है कर्नल स्पेस में, और आपकी एप्लीकेशन को रिटर्न कर देता है जितना भी आपकी एप्लीकेशन मांग रही है। ये सारी बातें बाद में भी आएंगी। तो ls-l में सब हो गया, ls-l कंप्लीट हो गया, ls-l कंप्लीट हो गया, pwd हो गया, cd हो गया, cp हो गया, mkdir बाद में, rmdir ये नेक्स्ट लैब में बता देंगे, WC भी बता देंगे, कैट भी बता देंगे। इनमें भी बहुत टाइम लगेगा कैट WC में। ऐसे तो छोटी मोटी चीजें हैं लेकिन सारा समझने के लिए टाइम लगेगा। और ये रीडायरेक्शन और पाइप ये थोड़ा बहुत बताया, वापस बता देंगे, फिर ये सब बताएंगे। ठीक है, ये कैट WC के साथ ही हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे आपको ये भी पता लग गया व्हाट इज मेंट बाय होम डायरेक्टरी। ठीक है, in how many ways can you find your home directory। फिर CD को विदाउट आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं तो क्या होता है, ये भी आपको पता लग गया। ठीक है, अब काफी चीजें आपको पता लग गई, काफी इसमें से कर सकते हो आप, और काफी चीजें आपको पता करनी है जो कि नेक्स्ट लैब में करेंगे पता, जिसे नेक्स्ट लैब में। लेकिन अब देखो टाइम तो पूरा चला गया, टाइम तो पूरा 2 लैब का ही तो टाइम है हमारे पास। तो 2 लैब में मैं तो ये पूरे कमांड एक्सप्लेन कर दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नेक्स्ट लैब में सारे कमांड एक्सप्लेन हो जाएंगे। काफी चीजें इस फाइल में से एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, वो टुकड़ों में बटी हुई है, और काफी चीजें नेक्स्ट लैब में एक्सप्लेन हो जाएंगी जल्दी जल्दी। ठीक है, लेकिन आपको तो ये सारे करके देखने से ही होगा। तो करके देखने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये बच्चे आपस में करेंगे, ये काम बच्चे आपस में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हेल्प चाहिए हो तो फिर बाद में मैं किसी लैब असिस्टेंट को आपके साथ दे दूंगा, वैसे बच्चे कर लेते हैं ये सब। तो ये सब बेटा करके देखो, करके देखो कि 2 वीक में, तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 वीक हमारे वर्चुअली चलने हैं, नेक्स्ट वीक भी वर्चुअली चलना है ना। तो नेक्स्ट वीक तक मैं तो कर दूंगा इधर दिखा दिखा के, और बच्चे क्या करेंगे, लिख भी लेंगे एक दूसरे का देख देख के, लेकिन करके नहीं देखेगा कोई, करके जो देखेगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, करके जो देखेगा वो आगे बढ़ेगा। लैब रिकॉर्ड तो सबका बन जाएगा इजीली, दोनों लैब भी आराम से हो जाएंगी, लेकिन जो करके देखेगा वो आगे बढ़ेगा। आयुष करके देखेगा, क्या करना है सर, आवाज कट गई थी आपकी। करना क्या है अरे यही करना है कमांड्स, बाकी क्या करवाऊंगा मैं। अमन बता देना इसे क्या करना है। कर लेंगे सर, ठीक है, बता दो बस कोई कि क्या करना है। सर मैं तो खुद पूछ रहा हूँ औरों से। सर आप ही एक क्या बार बता दो सर, एक बार फिर से बता दो क्या करना है, कर लेंगे सर, कमांड वमांड हो जाएगा।
चलो डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट। सर हमें प्रैक्टिकल के लिए उबंटू ही रिकमेंडेड है हाँ और कोई नहीं डिस्ट्रो यूज कर सकते सर? नहीं, आप लिनक्स कोई भी यूज कर सकते हो, लिनक्स सब लिनक्स पे ये सब चीजें चलेंगी। नहीं सर जैसे आप नैनो यूज कर रहे हो, काफी लोग टच यूज करते हैं सर सेम चीज के लिए। हाँ वो तो टच कमांड का थोड़ा बहुत मतलब 1-2% चेंज हो जाता है ना सर शायद। नहीं नहीं, लिनक्स कौन सी आप बात कर रहे हो, लिनक्स की सब पे ये कमांड चलेंगे। हाँ मतलब मोस्टली सर, बट 1-2% जो फाइल सिस्टम का भी चेंज आता है, जैसे कई लोग पैकमैन यूज करते हैं, कुछ लोग एपीटी यूज करते हैं सर शायद। लिनक्स कोई भी यूज कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। लिनक्स कोई भी यूज करो, विंडोज पे नहीं होगी लैब, लिनक्स पे ही होगी। हाँ सर। चलो अटेंडेंस लिस्ट तो डाउनलोड कर ली। लैब है कब तक, 12:40 तक है क्या? 12:30 तक है। 12:30 तक है। सर 12:30 की तक थी, 15 मिनट में ब्रेक, बीच में 15 मिनट का ब्रेक भी था, वो तो हमने ली नहीं, बट ठीक है खत्म हो गया वैसे तो। हाँ चलो खत्म हो गई। चलो डाउनलोड कर ली। कुछ पूछना चाहता है कोई? लेकिन ये आप सुनो, इसको मैंने काफी ज्यादा बताया है, मतलब काफी चीजें बताई है। आप सुनोगे करोगे तभी फायदा है, क्योंकि इसको पढ़ना क्या है, पढ़ने को तो सुमित्वा दास में सब कुछ लिखा है, जितना मैंने बोला है सुमित्वा दास में भी लिखा है सब कुछ, लेकिन बिखरा हुआ है सब, मतलब सब बिखरा हुआ है बुक में। तो आप पढ़ो लेकिन करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? फर्स्ट 2 लैब्स के लिए करना ज्यादा जरूरी है। ओके ओके चलो, सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। बेटा, थैंक यू। अगले Thank वीक you, तो आ sir. ही रहे हो ना आप, कब आ रहे हाँ हो? सर 5 दिन में सर। ये सर 5 अगले वीक आ रहे हैं। सब नहीं आ रहे सर, हम नहीं आ रहे सर अभी। तुम तो कभी मत आना। ठीक है सर, आपने आपने कह दिया तो सर नहीं आएंगे। कहाँ से हो आप दिल्ली आयुष? से, दिल्ली से, दिल्ली। दिल्ली से तो आ सकते हो, इतना पास में ही तो है। सर काम आ रहा है सर, कुछ कुछ अगले सेमेस्टर से आ जाएंगे। ठीक है, बाय। बाय सर। बाय सर।